الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ کسی علی والے نے سوال کیا کہ جب ہم ذکر میں بیٹھتے ہیں اور قلب پہ اسم علی کا تصور کرتے ہیں تو اس وقت وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ یہ کتنا بہترین سوال ہے۔ دیکھیں کہ آج تک کسی بھی نمازی نے ہم سے یہ سوال نہیں کیا کہ نماز میں ہمیں وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے۔ اور قرآن پاک میں اور احادیث میں جو ان وسوسوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کی کتنی تعریف آئی ہے۔ ایک دو جگہ تو اللہ نے ایسے بندے کی قسم اٹھائی ہے کہ جو ان وسوسوں سے، خیالوں سے جھگڑا کرتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کتنی داد اور مبارکباد کے لائق ہے۔ اور دوسرا جو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اس کا جو نقصان اللہ نے بتایا ہے وہ میں نے تفصیلاً ایک ویڈیو میں جو نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق اس میں بتا دیا ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہے جو اس وسوسوں کو روکا نہ جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے۔ تو دوستو، جب کسی بھی ذکر میں، عبادت میں یا اپنی قلب کو اسم کے تصور میں متوجہ کرنے سے یہ جو خیال آتے ہیں، یہ وسوسے آتے ہیں، اس کا یہی سبب ہے کہ یہ قلب میں کچرا بھرا ہوا ہے، یہ کچرا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک کمرہ ہو جس میں کوئی بدبو والی چیز گر جائے کمرے میں، پھر جب اس کا دروازہ کھلے گا تو وہ بدبو باہر نکلے گی۔ اب اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں۔ پہلے کمرے میں جو وہ بدبو والی چیز گری ہوئی ہے اس کی صفائی کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو دروازہ کھول رکھنا ہے تاکہ بدبو باہر نکلے۔ دھیرے 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 یہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ بس اسی طرح سے ہی آپ کو جو خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں عبادت میں یا اسم علی کا تصور کرنے میں، اس کے بھی دو سبب ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آپ کے قلب میں یہ وسوسوں کا کچرا بھرا ہوا ہے، اور جو اس کا دوسرا سبب ہے کہ شیطان زور لگاتا ہے، چاہے کچھ بھی کر لے، جو چاہے کر لے، مگر یہ اگر اس میں اپنی قلب کو یکسو کر گیا تو پھر یہ قرب الہی حاصل کر لے گا، پھر میرے کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے ابلیس زور لگاتا ہے کہ اس کام میں قلب کو یکساں کرنے میں یہ کامیابی حاصل نہ کرے۔ تو میرے دوستو، اس کو ختم کرنے، ان وسوسوں کو روکنے کا اور ختم کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ختم کریں۔ یہ جو شیطان کے بڑے دروازے ہیں ان سے گھس کر کے یہ قلب میں داخل ہوتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ نفسانی خواہشات کے جو بڑے دروازے ہیں شیطان کے، مثلاً کہ دولت کا حرص، ہوس اور شیطانی جو خیالات اور مذہبی کٹر پنی، دشمن کا جو حسد، انتقام لینا وغیرہ، ایسے جو بڑے دروازے ہیں اس کے وہ آپ بند کر لیں۔ اس کے بعد یہ قلب کے باہر چکر لگاتا رہے گا، اندر نہیں آئے گا۔ پھر اس کا جو علاج ہے ذکر سے کریں۔ جب آپ ذکر کریں گے، پھر جب ذکر اندر جائے گا تو وہ جو کچرا بھرا ہوا ہے وہ دھیرے دھیرے نکلتا جائے گا، وہ ختم ہوتا جائے گا۔ اور حدیثوں میں اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اس قلب کے وسوسوں کو اور خیالوں کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذکر بتایا گیا ہے۔ جیسے سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ جو متقی ہیں ان کو جب شیطان کے وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں، پھر فوراً دیکھنے لگتے ہیں، ان کو راستہ مل جاتا ہے۔ اور حدیثوں میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان وسوسوں کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ذکر بتایا گیا ہے۔ تو ارشاد ہوا سورہ اعراف میں، جو متقی ہیں ان کو جب
वसवसे आते हैं तो जिक्र करते हैं। और मुत्तकी कौन है वो मैंने एक वीडियो में जो मोमन और मुत्तकी में फ़र्क उसमें उसकी वजाहत कर ली है कि मुत्तकी मौला के मोहब को कहा जाता है, अली को आशिक को कहा जाता है। तो इरशाद होता है जो मुत्तकी हैं उनको जब वसवसे आते हैं तो वो जिक्र करता है। जिक्र किसका करता है? जिक्र भी तो अली का करेगा ना, अली का आशिक है, अली का मोहब है। तो वसवसों को भगाने के लिए ख़त्म करने की दवा है ज़िक्र अली। और उसकी परहेज़ क्या है? उसकी परहेज़ है नफ्सानी ख्वाहिशों से बचना। देखें कि जिस्मानी मर्ज़ के लिए भी जब आप दवा लेंगे डॉक्टर से और परहेज़ नहीं करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस कल्ब के मर्ज़ के लिए, वसवसों को ख़त्म करने वाले मर्ज़ के लिए भी इलाज उसका है ज़िक्र, और उसका जो परहेज़ है वो नफ्सानी ख्वाहिशों से बचना है। जब आप इस नफ्सानी ख्वाहिशों से बचेंगे और मुसलसल जो ज़िक्र करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये वस्व से ख़त्म होते जाएंगे। और कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि आपका कल्ब यकसो हो जाएगा। जब तक आपकी कल्ब में ये वसवसे आते रहें तो यूँ समझें कि अब तक ये कल्ब में जो मर्ज़ है मौजूद है, शैतान दफ़ा नहीं हुआ है, शैतान कल्ब के अंदर बैठा है। ये जो ज़िक्र है या किसी भी तरफ अपनी कल्ब को मुतवजा करना, ये परख है। यूँ समझें कि ये एक्सरा है, जैसे आप किसी मर्ज़ की एक्सरा कराते हैं या टेस्ट कराते हैं कि देखें कि ये हमारा मर्ज़ ख़त्म हुआ है कि नहीं। ये जो ज़िक्र है, ये जो तस्वर जमाना है, ये जो ख़याल को एक तरफ यकजो करना है, ये एक एक्सरा है, टेस्ट है। इससे पता चलता है कि मेरी कल्ब में शैतान है या नहीं। जब आप अपना कल्ब को एक तरफ यकसो करेंगे या इबादत में खड़े रहेंगे तो आप देखेंगे जब वसवसों का ख़त्म हो जाना आपको महसूस हो और कम महसूस हो वसवसें, तो समझें कि ये इलाज कारगर है और हमको फ़ायदा दे रहा है। फिर आपको यही करना है कि नफ्सानी ख्वाहिशों से बचे रहें और जो ज़िक्र है उसको जारी रखें, मुसलसल जारी रखें। फिर धीरे धीरे ये जो वसवसे हैं ये ख़त्म होते जाएंगे। अब देखेंगे दुनिया की मिसाल में कि मजाजी आशिक है, वो महबूब के यादों में कितना मुस्तगर्क हो जाता है कि हर वक्त उसको महबूब की याद होती है। बस महबूब का भूत उसके दिमाग पे सवार होता है। उठते बैठते चलते फिरते सोते हर वक्त उसको मजाजी महबूब की याद होती है। या एक ज्वारी की मिसाल में कि हर वक्त जुआ के ख्यालों में कैसे डूबा हुआ रहता है। इस तरह ही मेरे दोस्तों, जब दुनिया के कामों में कल्ब यकसो हो जाता है, मुमकिन है, तो फिर इबादत में या ज़िक्र अली में क्यों नहीं कल्ब यकसो हो सकता। बस इस सफ़र इश्क में एक ही रुकावट है, वो है सुस्ती। अगर किसी इंसान का शौक़ है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये क्यों सुकून मिलता है शराबी को शराब पीने में, ये क्यों सुकून मिलता है ज्वारी को जुआ में, ये क्यों सुकून मिलता है मजाजी आशा को महबूब की याद में। भाई ये सारी चीज़ें आदत से ताल्लुक़ रखती हैं। मुसलसल किसी भी काम को करने से नफ्स को आदत हो जाती है, फिर वो चीज़ें नफ्स को अच्छी लगती हैं, फिर नफ्स को उसमें लज्जत और सुकून आता है। इसी तरह ही बस आप अब ज़िक्र से अपनी नफ्स को, अपनी कल्ब को आदी कर लें। फिर जैसे बुरे कामों से नफ्स को सुकून मिलता है आदत की वजह से, वैसे ही आपको मौला के ज़िक्र से सुकून मिलेगा और आपकी कल्ब, आपकी नफ्स इससे लज्जत और सुकून हासिल करेगी। जैसे कुरान पाक में कहा गया है कि कल्बों का सुकून ज़िक्र है, ज़िक्र से ही जो कल्ब है वो सुकून हासिल करते हैं। ज़िक्र का मकसद भी यही है मेरे दोस्तों कि उसका असर कल्ब पे हो। जिस ज़िक्र का कल्ब पे असर न हो उस ज़िक्र का फ़ायदा ही क्या है। ज़िक्र इसलिए है कि उसका असर कल्ब पे हो। जब असर कल्ब पे पड़ेगा तो क्या होगा, नूर बनेगा। जब आप ज़िक्र करेंगे ना तो नूर बनेगा। यूँ समझें जैसे पत्थर पत्थर से टकराता है तो चिंगारी उठती है। जब आप का कल्ब ज़िक्र अली से टकराएगा तो नूर बनेगा। फिर उस नूर से नूर जाता रहेगा और जो ये वसवसों का किचरा है ये भागता जाएगा, इब्लीस भागता जाएगा। ये नूर से भागता है। जैसे अल्लाह कुरान पाक में कहा है कि नूर से हिदायत हासिल करो। जब ये ज़िक्र अली का नूर कल्ब में जाएगा तो ये वसवसों का जो
किचरा भरा हुआ है ये भी ख़त्म होता जाएगा, और जो इब्लीस चक्कर लगा रहा है ये भी भागता जाएगा। और हर इंसान की कलम में इश्क़ अली का जज्बा नहीं होता है, इसको बेदार करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिमाग पे, कल्ब पे हावी है, और जिसकी दिल पे अली की मोहब्बत हावी है तो उसके लिए तो ये काम आसान है। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी कल्ब में इश्क़ अली की शम्मा को रोशन न किया था। अज़ल वाले दिन हर इंसान की रूह में इश्क़ अली की शम्मा को रोशन किया गया है। इस दुनिया में आके इंसान मादियात के पर्दे में घेर गया, नफ्सा नफ्सी ख्वाहिशों में घेर गया, फिर वो शम्मा बुझ गई है। अब उसका जो तेल है वो ज़िक्र अली है, फिर ज़िक्र अली से उस शम्मा को रोशन करो, ज़िक्र का तेल डालकर इस शम्मा को रोशन करना है, और जितना इसमें तेल डालोगे इतनी ये शम्मा रोशन होगी। जैसे मेरे मुर्शद पाक सकीलाल शाहबाद कलंदर का शेर है, शराब इश्क नूश कुन अगर तू मारा मैं खाई, अगर तू मेरी ख्वाहिश रखता है तो फिर इश्क का शराब पी ले, इश्क का जाम पी ले, जाम मेहर अली दर दस्तन बाद जाम कुर्तन हम मस्मन। बस इश्क अली का जाम पीने से जो है वो दुनिया की मोहब्बत जो है वो बिल्कुल मगलूब हो जाती है, और इश्क़ अली की मोहब्बत जो है गालिब हो जाती है, क्योंकि किसका भी ज़्यादा ज़िक्र करने से मोहब्बत कलम में हावी हो जाती है। ये क्यों कहा गया है कि घर में गैर मर्दों का ज़िक्र न करो, क्योंकि बार बार गैर मर्द की तारीफ़ करने से, उसका ज़िक्र करने से जो घर की औरतें हैं वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, जब आप मौला का बार बार मुसलसल कसरत से ज़िक्र करेंगे तो धीरे धीरे अपनी आपकी कल्ब पे मौला की मोहब्बत हावी हो जाएगी, फिर शैतान धीरे धीरे निकलता जाएगा, क्योंकि ये अली से भागता है, ये मौला के नूर से भागता है, ये ज़िक्र इलाही से भागता है। इसलिए तो कुरान पाक और हदीसों में इस शैतान को दफ़ा करने का, इसके विसविसों को दौड़ाने का ये तरीका ज़िक्र ही बताया गया है। और यूँ समझो कि जब कल्ब में नूर पैदा होता है तो फिर इस नूर में मुशाहिदे होते हैं। जैसे कि मेरे मुर्शद पाक का शेर है कि चूँ तजली करद जाना बर दिल मन नागे हाँ, ई दिल बाद तजली मखजन असरार शुद। मुर्शद कहता है कि अचानक महबूब ने मेरे कल्ब पे तजली की, तो उस तजली के बाद जो मेरा कल्ब है, मेरा दिल है, इसरार और रमूज़ का ख़जाना बन चुका है। बस ये ज़िक्र कल्ब ही है जिससे बंदा पता नहीं इस दुनिया में कितना फ़ायदा हासिल कर सकता है और आखिरत में भी इसका फ़ायदा हासिल कर सकता है। इस दुनिया में इंसान को भेजने का अल्लाह का यही मकसद था कि जैसे मैं आपकी रूह को पाक और पोतर भेज रहा हूँ, वैसे ही इसको पाक और पोतर बना के मेरे पास पहुँचना। तो ये ज़िक्र अली के सिवा किसी भी तरह पाक और पोतर नहीं हो सकती है। और मौला अली मुश्किल कुशा ने भी यही इरशाद फरमाया है कि अपने जिस्मों को न संवारो, अपने रूहों को संवारो, जिसको अपने रब से मिलना है। तो ये संवर सकती है ज़िक्र अली से, ये खुशबूदार हो सकती है ज़िक्र अली से, ये मुनवर हो सकती है ज़िक्र अली से, ये वसल के काबिल हो सकती है ज़िक्र अली से। दुआओं में याद रखिएगा, याद रखिएगा।